I'm not busy. Okay, ma'am. Uh, Ma'am, I thought. let us- so, in the last class, we started off with major physical features of India. The chapter name is physical feature. Physical matlab something which is on the face. Like if you see my physical feature, that is what you can see is two eyes, one nose. So that is what we call as physical features. And I explained you that due to the presence of the tectonic movements inside the ocean, जो आपका अर्थ का जो क्रस्ट होता है that is formed. And wherever on the, if you see on the map of the world, you will see that South America and North America are there, and then there is a division of sea. Then again the continents of Europe is there. Then again there are certain seas. You can see the Mediterranean Sea, the Pacific Ocean, means 75% you will see that water is there. But jahan par bhi, wherever you are finding the what you call as land, that is because of the tectonic plates that are present inside, क्योंकि वही आपके लैंड को सपोर्ट करेगा. Then we also studied that there are three kinds of tectonic movements. Either the plates will join with each other. अब देखो दो प्लेट्स हैं, मैं तो ऐसी शक्ल बना रही हूँ. दो प्लेट्स हैं, दे जॉइन टुगेदर. दे मे ड्रिफ्ट अवे, एक कहीं और चला गया, एक और कहीं और चला गया, या दे मे ट्रांस इन दिस वे, ऐसा हो जाए. सो दिस इज हाउ द प्लेट मूवमेंट becomes the base for the land. And according to that, India was part of a large land which is called as Gondwana land. और जो आपका गोंडवाना लैंड है, दिस कंसिस्टेड ऑफ, in your book you will be finding this consisted of South America, South Africa, India, Australia and Antarctica. But due to the movements in the ocean, all of them drifted. आपका साउथ अमेरिका जाकर उस तरफ उस कोने में चला गया, देन अफ्रीका उधर चला गया, इंडिया आपका ऊपर की तरफ चला गया. Now the very first comes is, how did the Himalayas form? Because the Himalaya is also called as the young fold mountains. They are the most recent landforms. And this is because when the tectonic movement caused the land drift, India का जो टुकड़ा था, which drifted and collided with the South Asian continent. तो वहाँ एक सी हुआ करता था, and due to those sediments which accumulated over there, मतलब उसके ऊपर गिरता रहा, that formed the present Himalayan structure. हमारे यहाँ पर तो हिमालय का एक पोर्शन है, थोड़ा सा ऊपर आप जाते हो तो वहां पर भी इट इज देयर. सो इन दिस मैनर आपका हिमालय वाज फॉर्म. एंड हिमालय के फॉर्म होने की वजह से द वाटर, द ग्लेशियर्स, द रिवर्स, दे स्टार्टेड फ्रॉम हिमालय. और जब वहां से वो स्टार्ट हुए तो व्हेन दे स्टार्टेड डिपॉजिटिंग द सॉइल, वो फॉर्म हुआ आपका द प्रेजेंट नॉर्दर्न प्लेन्स. ये हमने लास्ट में पढ़ा था. नाउ लेट अस कम टू द वन विच बुक. यू विल फाइंड इन इंडिया कुछ जगह हिली है, सम आर रग्ड. रग्ड मतलब ऊबड़ खाबड़ टेरेन with mountains and valley मतलब दो पहाड़ों के बीच में आपकी जो जमीन चलती है. In fact, our country has all the major physical features: mountain, plain, desert, plateau and islands. And that is why it is a kind of continent. The land of India displays great physical variation. ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस आपकी बुक में, this will be there in second or third page.
and this is one of the most important which comes in the MCQ. Geologically, this particular question comes in the MCQ. Geologically, the peninsular plateau आपका वो जो नीचे मतलब कि जो है the one with the triangular mass constitutes one of the ancient land mass on the earth's surface. As I said, this is actually the part which drifted from the Gondwana land. ये वो है जो गोंडवाना से ऊपर की तरफ आया था. It was supposed to be one of the most stable land blocks. One MCQ question. Stable मतलब बिल्कुल टूट फूट नहीं है. The Himalayas and the northern plains are the most recent. अभी मैंने इसकी कहानी आपको सुनाई थी that how Himalayas was formed and how the northern plains were formed. From the point of view of geology, Himalayan mountains form an unstable zone because they have been formed due to the collision. और आप देखोगे कि कभी भी whenever there is an earthquake or any movement, Himalayas पर बहुत फर्क आता है. So that is why they are unstable. The whole mountain system of Himalayas represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing rivers. हमारे दिमाग में हिमाचल का मतलब ही वही है, वो लंबे लंबे पहाड़, बीच में आपके जो है the land is made, water जा रहा है. The northern plains are made of alluvial deposits. ये हम लोग अभी पढ़ेंगे. That day I told you that there are two kinds of soil. One is the Bhangar and Khadar, and both of them are called as alluvial soil. The peninsular plateau is composed of the igneous and metamorphic rocks. ये आपका वो पुराना है, the one which came from the Gondwana one. So it consists of the, and that is why you will find lots of minerals in these areas. With gently rising hills and wide valleys, जो आपका Western Ghats and Eastern Ghats जो हम पढ़ेंगे. And if you have the book, mark this one. This is the one which is actually which comprises of one marker question. Major physiographical division. तो जब हमने इतना कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा टेक्टोनिक मूवमेंट्स का, हमने पढ़ा हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म. तो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ वी लुक, आवर कंट्रीज फिजियोग्राफी इज 6. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको नाम लिखने होते हैं. द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and islands. Now let us come to the Himalayan mountains. मतलब उस दिन आपको मैंने मैप में दिखाया था, हम हाइट में भी हिमालयास को देख सकते हैं, हम लेंथ में भी देख सकते हैं. हिमालयास वही है, लेकिन हम उसको जो है we can divide it on the basis of the height of the peaks. चोटी. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, that is why they are called as young fold mountains, stretch over northern borders of India. They run in a west to east direction from Indus to Brahmaputra. मतलब ऊपर आपके Indus river बहता है और आपके असम में ब्रह्मपुत्रा river बहता है. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain in the mountain barriers of the world. Now, loftiest मतलब सबसे ऊंचे peaks, you know, Mount Everest उसी के ऊपर है, तो the Himalayas जो है उनमें सबसे ऊंचे ऊंचे आपके जो है पहाड़ है. And you also have the rugged mountain, मतलब उबड़ खाबड़ barriers of the world, because it is the presence of Himalaya जो कि एशिया में जितनी ठंड होती है ना, उतना इंडिया के अंदर ठंड नहीं आता है. They form an arch covering around 2400 kilometers. Their width
400 kilometers in Kashmir and 150 in width, मतलब चौड़ाई, लंबाई नहीं चौड़ाई. The means it is more in Kashmir and it is less in Arunachal Pradesh. The altitude मतलब height, altitude मतलब height. The altitudinal variations are greater in eastern half than those to the western half. मतलब वो जो उनके बीच में जो difference है. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in the longitude. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range, सबसे ऊपर, consists of Himadri or the inner Himalayas, जहाँ पे बर्फ होते हैं. It consists of the most continuous of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meter. It contains all permanent Himalayan peaks. ये देखिए, this is the one, and on the basis of the height हम इसको डिवाइड करते हैं. ये सबसे ऊंचा 1, फिर थोड़ा नीचे ग्रेटर हिमालय, देन आपके नीचे शिवालिक. तो सबसे ऊंचे आपको इफ यू सी हिंदू कुश, देन इफ यू सी काराकोरम रेंज, ये आपके मैप का क्वेश्चन है. K2 काराकोरम, दिस इज द मैप. मतलब यहाँ पर जो पीक है दैट इज द रेंज का मतलब हो जाता है. लेट अस मेक ऑन द ब्लैक बोर्ड. इफ आई मेक दिस, ये पूरा रेंज है एंड इसमें सबसे जो ऊंची वाले जो है पहाड़, उसको हम कहते हैं द हाईएस्ट पीक. तो द हाईएस्ट पीक इज कराकोरम आपका आएगा. इट विल बी कमिंग इन योर मैप क्वेश्चन व्हेन वी विल डू इट. द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल, मतलब टेढ़े ऊंचे नीचे. और जो इसके नीचे है जमीन, इट कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट. ग्रेनाइट स्टोन्स हम लोग यूज करते हैं किचन के ऊपर, जो हमारे वो लगे होते हैं, जो मार्बल सा लगा होता है, दे आर. इट इज पेरिनियल स्नो बाउंड. पेरिनियल मतलब ऑलवेज. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. द रेंज विच लाइंग टू द साउथ, मतलब ग्रेटर हिमालय से थोड़ा नीचे आने के बाद है हिमाचल. दिस और लेसर हिमालय, इसको हम लेसर हिमालय या हिमाचल कहते हैं. जो हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू है, मनाली है, हमारे जितने भी हमारे इंडिया के अंदर इफ वी कॉल द हिल स्टेशंस, दे आर देयर. द रेंजेस आर composed of highly compressed and altered rocks, टूटे फूटे दबे हुए. The altitude is around 37 to 4500. ऊपर था 6000, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम है. While the Pir Panjal range forms the longest and important range, the Dhauladhar and Mahabharat ranges are prominent one. मतलब अगर आप इसमें देखोगे तो पीर पंजाब, ये देखिए, ये जो जस्कर रेंज, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज, इसमें यहाँ पर आपके पीक्स होते हैं. एंड द रेंजेस आई हैड ड्रॉन ऑन द बोर्ड, उसको हम रेंज कहते हैं. तो सबसे लंबा वाला है आपका पीर पंजाब. दिस कंसिस्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू एंड बड़े सारे जो आपके होल हिल स्टेशन. द थर्ड वन, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम लॉन्गिट्यूडनल अकॉर्डिंग टू द हाइट पढ़ रहे हैं. द आउटरमोस्ट ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड एज शिवालिक. ये जो आपका थोड़ा ज्यादा, ये शिवालिक रेंज. दिस यू कैन सी द जस्कर रेंज, ये आपका शिवालिक रेंज. इट हैज़ एन एल्टीट्यूड बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स. अब ये जो हमने अभी 1100 मीटर 3700 मीटर पढ़ा था, ये पता है क्या है? ये होता है आपका बच्चा जो आपका सी है. दिस इज द सी, ये हमारा सी है. तो सी से जो ऊंचाई होती है, अबाउट सी लेवल कितना है, उसको हम लोग नापते हैं. लैंड से कितना ऊपर जाता है, उसको हम नापते हैं.
These ranges are composed of unconsolidated sediments which are brought down by the rivers of main Himalayan ranges located north. ये इनमें जो है ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब होता है आपके कंकड़, अलूवियम. द लॉन्गिट्यूडनल मतलब हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं दून. और दून के अंदर आता आपका देहरादून विच इज़ वेरी फेमस नियर आपका मसूरी, कोतली दून, पतली दून आपका क्या नाम है ये तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दैट इज देयर इन कोतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून. दून मतलब जो आपके जो ग्रेवल्स हैं, जो आपके सॉइल हैं उससे बना हुआ. तो ये जो हमने पढ़ा था, दिस इज डिविजन ऑफ हिमालयास ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग. आप लोग जब अपने स्कूल में खड़े होते हो तो सबसे छोटा बच्चा पहले खड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा खड़ा होता है, फिर सबसे ऊंचा सबसे लंबा वाला बच्चा पीछे खड़ा होता है. सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. Besides the longitudinal, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east, यानी कि latitudinal, लंबाई में, और बीच बीच में आपके rivers आ जाते हैं. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, part of Himalaya, ये सारा one marker question है. Part of Himalaya which lies between Indus and Satluj is traditionally called as Punjab Himalaya. It is also known as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east. मतलब इसके अलग अलग नेम है. जो इंडस और सतलुज के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं. The part of Himalaya lying between Satluj and Kali river is known as Kumaon Himalayas. कल हम लोगों ने वो एक when we were writing the description तो उसके अंदर मैंने कुमाऊं बताया था. That is the Kumaon. The Kali and Teesta river demarks the Nepal Himalaya, वो हमारा इंडिया का पार्ट नहीं है. And the part which lies between Teesta and Dihang is known as Assam Himalayas. If we look into the map, I'll show it on the map. ये देखिए, अगर हम यहाँ से ये जो मतलब कि हिमाचल वाला एरिया, ये वाला जो है, ये यहाँ आपका जो है यू आर हैविंग द इंडस रिवर, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर पंजाब हिमालय आ जाता है. फिर ये इस तरफ थोड़ा सा राइट साइड जो हमारे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज अ कुमाऊं हिमालयास. ये जो बीच में जो बिल्कुल बिना नाम के लिखा है, दिस इज द नेपाल हिमालयास. और ये जो राइट साइड में ये वाला आ रहा है द कर्सर जहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड एज द असम हिमालयास. बट इन असम, फॉर द असम हिमालयास वी हैव मेजर लोकल नेम्स, अलग अलग नाम से भी कहे जाते हैं. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of Himalaya. आप अगर मैं दिखाऊं on the on the this, ये यहाँ पर दिख रहा आपको, यहाँ पे बीच में ना there is a valley, मतलब जगह है, और इसके अंदर से ब्रह्मपुत्रा जो है चाइना से इंडिया के अंदर घुसता है. चाइना में उसका नाम है सांगपो. The river is known as Sangpo in China, but in India it enters, और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला जो ये है आपका दिहांग. इसके अंदर इसके थ्रू जो है it comes into India through a gorge. What is gorge? ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी. Behind the Dihang gorge, let me tell you what is gorge. ये दो पहाड़ है, ठीक है, और इसके बीच में से ये रिवर निकल के आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज गॉर्ज. और ये दिहांग गॉर्ज से आपका जो है ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अंदर एंटर करता है. एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री. दे आर नोन एज पूर्वांचल, क्योंकि वो ईस्टर्न साइड में है, इसीलिए उनको हम असम हिमालयास और पूर्वांचल भी कहते हैं. और आपके मेजर आपके सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर? जो आपके ईस्टर्न माउंटेन्स हैं,
उनमें मतलब ट्रेडिशनली उनको जो है दे आर कॉल्ड एज 7 सिस्टर्स बिकॉज वो सब साथ 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 में है. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary, नीचे जो रह जाते हैं sediment, covered with dense forest. They mostly run as parallel range and valleys. The Purvanchal comprises of the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. और जैसे मैंने आपको बताया the 7 sisters जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, they all form here like Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and one brother is Sikkim. एक भाई है 7 बहनों में. You can see that. You can Google it, you will find it. So this is how Himalayas are demarcated on the basis of height or on the basis of the situation. मतलब जो आपका हिमाचल वाला जो एरिया उधर उस तरफ आता है वो आपका पंजाब हिमालय, थोड़ा जो उत्तराखंड की तरफ आता है उसको हम कुमाऊं बोलते हैं. Then the Nepal one and the end is आपका Assam Himalaya. Now comes the northern plain. As I had already मतलब मैंने आपको बताया कि जो आपके ऊपर हिमालयाज बने तो उनमें आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स and those glaciers turn into rivers. और जो वो रिवर की वजह से, बिकॉज वो रिवर में क्या होता है, रिवर नहीं है, रिवर में मिट्टी होती है, तो वो जो मिट्टी जहाँ जहाँ पर जैसे 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 वो नीचे उतरते हुए जैसे जैसे वो जमा हो जाती है, उसके आसपास का जो एरिया है वो सारा नॉर्दर्न प्लेन है. एंड नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेन बकेट ऑफ इंडिया बिकॉज आपके जो मेजर क्रॉप्स हैं लाइक आपका वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये सब कुछ इन्हीं जगहों पे होते हैं बिकॉज दे आर वेरी 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 फर्टाइल. The northern plain has been formed by the interplay of 3 major river systems, Indus, Ganga and Brahmaputra. Along with their tributaries, मतलब एक्चुअल में ये जब हम रिवर आता है ना तो ऐसा नहीं है कि रिवर ऊपर से नीचे आया, ओ दिस इज इंडस, नो. वो जहाँ जहाँ पर झरना, आपने देखा होगा जगह जगह झरने होते हैं. If you have visited the mountains, you will find जगह जगह पे you will be finding the झरनास. ये अलग अलग जगहों पे मतलब कि जहाँ जहाँ इनको पानी को अपना रास्ता दिखाई देता, दे मूव एंड लेटर ऑन दे ऑल फॉर्म टुगेदर, वो एक जगह आके मिल जाते हैं, तो हम इनको ट्रिब्यूटरीज एंड, अगर रिवर 2 हिस्सों में बट जाता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं. This plain is formed of alluvial soil. और alluvial soil में there are 2 kinds of alluvial soil which you will be reading now. The deposition of alluvium in a vast basin lies at the foothills of Himalaya over millions of years form this fertile plain. जो आपका पंजाब से स्टार्ट होता है और आपके जो है बिहार, झारखंड पूरा वहां तक जाता है. It consists of 7 lakh square kilometer, around 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. It is a densely populated, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहीं पर आपका civilization start होता है और जहाँ civilization होगी वहीं आपका population होगा. With a rich soil combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. It's also called as a grain basket of India. The rivers coming from the northern mountains are involved in depositional मतलब deposit करते हैं, जमा करते हैं. क्या जमा करते हैं? The alluvial soil. In the lower course, due to gentle slope, मतलब ऊपर से आते हुए जो हल्की सी स्लोप होती है वहाँ the velocity of river decreases और यहाँ आपके islands बन जाते हैं. और इंडिया के अंदर the only island is Majuli, which is formed by the Brahmaputra river and it is there in West Bengal.
An island is which is covered with water on four sides. यानी कि अगर वो समुद्र से, if it is covered with water of sea, then it is called as island. But if it is covered with the river water on four sides, it is called as riverine island. This is a one marker question. The rivers in their lower course split into numerous channel due to deposition of silt. ये silt होता है मिट्टी, which is very आपका जो है थोड़ा मतलब पतला सा होता है, and this is very important for the crops. And these channels are known as distributary. मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपका रिवर जो है ना वो ऊपर से चढ़ता है तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग मतलब कि हम ऐसा सोचें कि भाई ऐसा रिवर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो बस ये रिवर आ गया, चलो चलो ऐसे चल गया. नो, ये रिवर जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगा, कभी कभी झरना नीचे की तरफ होगा, कहीं पर यहाँ पर होगा, एंड देन व्हाट, मतलब ये सारे इनका ओरिजिन एक है बट ये अलग अलग मूवमेंट से निकल के चलते रहते, एंड देन दे वुड जॉइन टुगेदर टू ड्रेन इनटू सम बिगर रिवर लाइक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. ये सारा आपका सेकेंड चैप्टर. इनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, मतलब रिवर सेम है लेकिन उसका ओरिजिन अलग अलग जगह से वो निकल के आ रहा है. एंड डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है रिवर, ये रिवर है आपका, बीच में आपके जो है मिट्टी आ गई तो रिवर दो हिस्सों में बट गया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. द नॉर्दर्न प्लेन इज The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of northern is said as Punjab plains, जो ऊपर की तरफ है, जहां आपका पंजाब मेनली है, formed by Indus and its tributary. आपको पता है पंजाब का नाम क्यों पंजाब है? Because पंजाब के अंदर आपके 5 आब हैं. आब का मतलब क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड द ट्रिब्यूटरीज. और पंजाब इज फॉर्म विथ 5 ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज. ये जो 5 है जो कि इंडस का ही हिस्सा है, लेकिन ये झेलम के नाम से, चेनाब के नाम से, रावी के नाम से, ब्यास के नाम से और सतलुज के नाम से बहते हैं. And they are the one which move towards, and that is why it is called as Punjab, 5 Aab, the name of Punjab. And Indus आपका maximum जो है पाकिस्तान के अंदर है. इंडिया में we are allowed to take 1/5 of the water. हमारा और जो पाकिस्तान है हमारा, there is an agreement which is called as the Indus Water Treaty. इट इज कॉल्ड एज द इंडस वाटर ट्रेटी. और उस ट्रेटी के अकॉर्डिंग हम लोग इस रिवर का एक हिस्सा ही हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. दौब मीन्स 2, दो आब मीन्स 2 वाटर, एंड पंजाब मीन्स 5 वाटर. और वो 5 कौन कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. द गंगा प्लेन्स, ये आपका है घाघर एंड तीस्ता, मतलब ये आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, देन बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. दिस आर 1. और अगर आप देखोगे थोड़ा सा मतलब आपका असम में है कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन, क्योंकि वहां से नीचे ब्रह्मपुत्रा रिवर आता है तो उसके साथ में जो मिट्टी आती है वहां जो प्लेन बनता है दैट्स अ ब्रह्मपुत्रा प्लेन. जो इंडस से बनता है आपका पंजाब प्लेन है, फिर गंगा प्लेन है. गंगा प्लेन हमारा जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारा आपका गंगा प्लेन चलता है. वेयरएज अगर उत्तर प्रदेश मैक्सिमम आता है, एंड इफ यू लुक इनटू द असम, इट इज द असम प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन. नाउ एज आई सेड, इसमें आपके 2 तरीके की मिट्टी होती है, सॉरी मिट्टी आती है. तो मतलब ये मिट्टी जो होती है इट इज कॉल्ड एज अलूवियम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अलूविया, अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. लेकिन ये जो मिट्टी है, अब जैसे रिवर बह रहा है
रिवर बह रहा है, जैसे ये रिवर है आपका, तो रिवर के पास में आपकी मिट्टी होती है, बिल्कुल। और ये जो रिवर के पास में जो मिट्टी होती है ना, वेन एवर द रिवर, क्योंकि रिवर आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो करता है, पानी चला जाता है, ऊपर से आता रहता है, तो दिस इज रीजनरेटेड, मतलब ये मिट्टी बार बार आती रहती है। दिस इज अ न्यू alluvium soil, which is very 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 important. एंड मिट्टी उड़ते 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 आपके थोड़े दूर चले जाते हैं, दे आर नॉट दैट मच फिट फॉर कल्टिवेशन, बट दे आर ऑल्सो अलूवियल सॉइल, लेकिन इनमें ना मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े, एंड दीज आर ओल्ड अलूवियल सॉइल्स। तो वी डिवाइड दिस सॉइल इनटू टू, हम इस सॉइल को दो में डिवाइड करते हैं। The northern plains are generally described as flat land with no variation. It's not like that. These vast plains also have diverse relief features. The rivers, after descending from mountain, deposit pebbles, कंकड़, around the slopes of शिवालिक। मतलब अगर आप शिवालिक के आसपास में जाओ तो वहां पे बड़े सारे आपको कंकड़ से, और उस एरिया को हम कहते हैं भाबर, क्योंकि ऊपर कंकड़ होते हैं और जो पानी होता है, स्ट्रीम्स होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, एंड जब थोड़ा नीचे आते हैं तो द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी मार्शी एरिया, जैसा आपका जो है, यू आर हैविंग द धुंधुआ नेशनल पार्क। मतलब यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही वेट होती है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ जैसी होती है, स्वैम्पी एंड मार्शी, मतलब, और इसको हम कहते हैं तेराई रीजन। और इस रीजन में आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। नीचे, उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो the largest part of northern plain is formed of older alluvium. It lies above the flood plains of river. Flood plain होता है बिल्कुल river के पास में, and present a terrace like. Terrace कैसा होता है? सीढ़ियों के जैसा. It's called as bhangar. The soil in this region contains calcareous. Calcareous मतलब calcium deposits, locally called as kankad. The newer younger deposits are called as khadar. आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन भाबर एंड खदर, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस कम्स in 9th also, the same question comes in 10th also. The question comes in 9th also, the same question comes in 10th also. आपके 10th में पहले चैप्टर में सॉइल्स को डिस्क्राइब करने का है, तो उसके अंदर भी डिफरेंशिएट बिटवीन भाबर एंड खदर इज देयर। They are renewed almost every year and so fertile, thus ideal for intensive agriculture. भाबर थोड़ा पुराना सॉइल होता है। This is how northern plains have been formed. The peninsular plateau is a tableland. अब जितना मैं पढ़ाऊंगी, this is the last one which I am going to take for today's session. Each point from this concept is going to be a question for you. The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and it makes the oldest part of landmass. आपको मैं बता चुकी हूँ. This plateau has broad and shallow valleys. मतलब यहाँ पे वैली डीप नहीं होती है, and rounded hills. The plateau contains 2 broader divisions. The Central Highland and the Deccan Plateau. मतलब आपके जो लेफ्ट साइड में अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, AVS, दैट इज आपका सेंट्रल हाईलैंड. और नीचे की तरफ जो आपका तमिलनाडु और जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया वो आता है, दैट इज आपका, दिस इज कॉल्ड एज अ डेक्कन प्लाटू.
द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग, इसको पेनिनसुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि पेनिनसुला मीन्स द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 sides. It lies to the north of Narmada. A major area of Malwa Plateau is known as Central Highland. The Vindhya Range, that is Satpura on the south and the Aravalli on the northwest. Aravalli, Vindhya, Satpura आता है. And Delhi lies in the Aravalli area. The further westward extension generally merges with sandy rocky deserts of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region is Chambal, Sindh, Betwa and Kean. मतलब ये अलग अलग नाम है. The central highlands यानी कि जो आपका अरावली वाले एरिया के अंदर है are wider in the west, वहाँ ऊंचा है, फिर चौड़ा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वो कम होता जाएगा. And the eastward extension of the plateau are known as Bundelkhand, Bagelkhand. The Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by Damodar river. आपका ये जो है this is Odisha, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया वो आएगा ये. The Deccan Plateau is a triangular, ये वाला जो triangular वाला, this question comes, which plateau is a triangular land mass? The Deccan Plateau. That day I had made on the map. The Satpura range flanks its broad base in the north. Mahadev, Kaimur, Michael, ये सब आपके ईस्ट है, ये सारा मध्य प्रदेश एरिया है. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. An extension of the plateau is also visible in the northeast, जो आपका असम वाला है, वहाँ पर भी इसके कुछ कुछ आपके जो हिस्से हैं वो दिखाई देते हैं, लाइक मेघालय, करबी, यहाँ पर आपको दिखाई देता है. It is separated by a fault from the छोटा नागपुर plateau. शायद ये छोटा नागपुर plateau से अलग होकर वहाँ चले गए हैं. 3 prominent hills are Garo, Khasi and Jaintia. ये आपके पेपर के मैप का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका मिजोरम, मेघालय है, ये वाला एरिया. दैट इज ऑल्सो प्लेटू रीजन. उसके ऊपर आपका असम प्लेन्स, उसके ऊपर आपका द असम हिमालयास. The Western Ghats and the Eastern Ghats. Differentiate between Western Ghats and Eastern Ghats. A 5-marker question, and it is a very, 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 very important question which comes in normally all the schools. Mark the west and eastern edges of Deccan Plateau. अगर हम लोग इसको देखते हैं, this is a map of India. So यहाँ से आपका जो है ये plateau region जो है, this comes. ये आपका जो है this is a central island. ऊपर आपका अरावली, देन आपका विंध्या, देन आपका सतपुरा रेंज आता है. एंड ये जो एरिया नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ डेक्कन प्लेटू. इसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं. ये जो एक्सटेंड होकर चलता है इसको छोटा नागपुर कहते हैं, और ये जो नीचे की तरफ आता है दिस इज कॉल्ड एज अ डेक्कन प्लेटू. तो ये जो कोस्ट है और ये जो प्लेटू है, इन दोनों के बीच में जो ये एरिया आ रहा है, इनको हम लोग जो है घाट्स कहते हैं. ऑन द वेस्ट इट इज कॉल्ड एज अ वेस्टर्न घाट्स, and on the east it is called as the eastern. उस दिन आपको मैंने बताया था, the western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. मतलब ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना. The western Ghats are higher than eastern Ghats. उनकी जो ऊंचाई ऐसे जाती है वो थोड़ी ज़्यादा है. Their elevation मतलब ऊंचाई, it's around 1600 as against Eastern Ghats सिर्फ 600. The Eastern Ghats stretch from Mahanadi Valley to the Nilgiris. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers. आपका गोदावरी, कृष्णा, ये रिवर बीच बीच में आ जाते हैं जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं. The western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds
to rise along the western slopes of the Ghats. आप अगर देखोगे तो बॉम्बे वाला जो एरिया है, देन आपका जो केरला वाला एरिया है, यहाँ पर हमेशा ही आपके जो है बारिश होती है, because they face that rain bearing clouds. The western Ghats are known by different local names. It progressively increases from north to south. मतलब नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ, महाराष्ट्र, आपका लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, फिर आप नीचे नीचे आते हो तो इनमें अलग अलग जो है घाट्स है. एंड द हाईएस्ट पीक ऑन वेस्टर्न घाट इज अन्नईमुदी एंड दोदा बेट्टा, और ये है आपका ऊटी में, द उदमंगलम. दिस इज इन ऊटी, वहां पर प्रॉपर है, मतलब एक ना वो बना हुआ है वहां पर. Mahendragiri is the highest peak in the eastern Ghats. The Chevroy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of East Ghat. Locate the famous hill station Udagamandalam. Udagamandalam is popularly called as Ooty and Kodaikanal. The Kodaikanal और ऊटी दोनों जो है वहीं पर है, जहां आपका अन्नईमुदी एंड दोदा बेट्टा है. One of the distinct features of the peninsular plateau is a black soil area known as Deccan Trap. क्यों? क्योंकि ये वो प्लेटू है जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन से आया था. मतलब जब गोंडवाना लैंड टूटा था वॉल्केनो से, तो उससे ये लैंड बना था. तो इसमें आपके वो रॉक्स हैं जो आपके जो है वॉल्केनिक रॉक्स हैं. एंड दैट इज वाई ओवर द पीरियड इस जगह की जो मिट्टी है, इट इज ब्लैक इन कलर. एंड जो ब्लैक सॉइल होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन क्रॉप्स, और इसीलिए हम इसको जो है रेगर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. द अरावली hills lie on the western and northwestern margins of peninsular plateau. They are eroded hills and are found as broken hills, टूट फूट के. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. आपको मैंने बताया था that in जो हमारा जो Delhi है, that lies in the Aravalli range. If we look into the map, see this is the Aravalli range. दिस इज आपका, यहाँ पर आपका जो है अरावली, विंध्या, सतपुरा. ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रिमेंबर इट विद द नेम ऑफ AVS. AVS. Why? Because it comes into the paper for marking of the map. तो अरावली सबसे ऊपर, विंध्या बीच में, सतपुरा नीचे. एंड आपकी जो रिवर है नर्मदा, दैट आपका जो है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है. तापी आपके नीचे सतपुरा से स्टार्ट होता है. एंड ये आपका अरावली रेंज जो है ये ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, टियर टू, मतलब कि गुजरात से दिल्ली तक. और दिल्ली का जो आपका हाउस खास वाला जो एरिया है, बसंत विहार, हाउस खास, ये जो सारे एरियाज हैं, दे आर ऑल मतलब कि पार्ट ऑफ अरावली रेंज. द वेरी फेमस mountain, that is Mount Abu, is also present in Aravalli range. बहुत ही फेमस है माउंट आबू. द मार्बल स्टोन्स, वहाँ पर एक जैन मंदिर है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. उदयपुर, ये सारा आपका मतलब कि उस एरिया में आता है. सो इन टुडेज क्लास what we have studied, let us have a nutshell में. I'll tell you this in a nutshell. सबसे पहले तो हमने पढ़ा था that the Indian continent, the Indian subcontinent is having all kinds of features, which includes the mountains, the plains, then the plateau region, the deserts and coastals and island. Then हमने पढ़ा था, though it was not there on the screen, but I told you the theory of tectonic movements, the plate theory, जिसके मूवमेंट की वजह से आपका जो लैंड होता है वो फॉर्म होता है. देर आर डिफरेंट प्लेट्स. इफ यू लुक इन टू योर बुक, यू विल फाइंड द यूरेशियन प्लेट, द अमेरिकन मतलब प्लेट्स. यूरेशिया इज यूरोप एंड एशिया,
एंड बिकॉज जो इंडिया का जो प्लेटू रीजन था दैट came and drifted to the Asian one. That is why India is part of Asian continent. फिर हमने पढ़ा that when the collision took place, मतलब जब वो टकराए तो they formed into, उसमें से rocks आपकी मिट्टी गिरती रही which folded and which formed the Himalayas, and that is why Himalayas are also called as the young fold mountains because उनका जो formation है they are मतलब कि थोड़ा पहले मतलब अर्थ में थोड़े टाइम पहले फॉर्म हुआ था, अर्थ तो बहुत पहले फॉर्म हो गया था बिलियंस ऑफ ईयर्स, बट हिमालयाज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स, दैट इज व्हाई. देन वी रेड दैट द फिजियोग्राफिक फीचर में हमने सबसे पहले पढ़ा हिमालयाज. देन वी रेड हिमालयाज इज डिवाइडेड ऑन लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट. सबसे ऊपर 6000 मीटर्स आपका द ग्रेटर हिमालयाज, then the lesser Himalayas or the Himachal, and then Shivalik. The greater Himalayas composed of the granites, they are perennial snowbound, and then the lesser Himalayas में valleys हैं like कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, and then शिवालिक में आपके जो एरिया बीच में है that is called as the दून, देहरादून, कोतली दून, पतली दून. On the other hand, we also read that the Himalayas can also be divided on the basis of their latitude. यानी कि जो आपका if we look into कश्मीर, पंजाब से वहां तक आने वाले को पंजाब हिमालयास बोलते हैं. The one which starts from हिमाचल to नीचे तरफ उसको कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास, and at last the Assam Himalayas. The Assam Himalayas are also called as Purvanchal because they lie to the east. Then हमने पढ़ा the northern plains, क्योंकि जब आपके हिमालयास फॉर्म हुए तो दे ब्रॉट द रिवर्स, रिवर्स के साथ आपके एलुवियम सॉइल स्लिट आए आपके विच वर डिपॉजिटेड. तो जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है जब वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो पहले आता है भाबर प्लेन जहां आपके कंकड़ होते हैं, जहां आपके झरने छुप जाते हैं. एंड देन थोड़ा नीचे आता तेराई रीजन जो बहुत कीचड़ सा होता है जहां वाइल्ड लाइफ आपके पाए जाते हैं. देन आपका मेन प्लेन जिसमें आपके रिवर के पास में जो है वो खदर, एंड रिवर से जो दूर रहते हैं उस मतलब की सॉइल को हम कहते हैं भंगर. The Bhangar consists of the old alluvium soil which is not that much fertile, and the one which is near the river bed is the Khadar, which is a very important source for agriculture. Then we studied about the peninsular plateau. Why we call it as peninsular plateau? Because it extends somewhere आपका जो है from the Aravali and it goes नीचे की तरफ जाता है. It is a triangular. जो आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है अरावली, विंध्या एंड सतपुरा वाला जो एरिया उसको हम सेंट्रल हाईलैंड या मालवा प्लेटू कहते हैं. मालवा आपका जो है दैट इज इन भोपाल, आपका मालवा इज इंदौर, मालवा प्लेटू वो वाला जो एरिया पूरा. ऊपर की तरफ अरावली है विच एक्सटेंड्स टिल दिल्ली. फिर बीच में आपका विंध्या है, द रिवर नर्मदा जो है वो उसमें आता है गुजरात के पास. एंड नीचे आपका सतपुरा है विच उसके नीचे तापी रिवर आता है. इसका जो एक्सटेंशन टुवर्ड्स ईस्ट जाता है दैट इज आपका बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड एंड में हम इसको छोटा नागपुर बोलते हैं. देन व्हेन इट कम्स टू डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द साउथ, this is a triangular mass Deccan plateau which consists of the rocks, igneous rocks, the black volcanic rocks, which is important, which forms a soil, black soil. इन दोनों प्लेटूस और कोस्टल के बीच में जो जगह आती है उसको हम घाट्स कहते हैं. ऑन द वेस्ट इट इज द वेस्टर्न घाट्स विच अगर हम देखते हैं तो ऐसे कॉन्टिन्यूस चलते हैं. ये पहले नॉर्थ की तरफ छोटे होते हैं, जैसे 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 साउथ में आते हैं थोड़ा बड़ा होता जाता है. एंड देन ऑन द ईस्ट इट इज कॉल्ड एज ईस्ट. देयर आर सम माउंटेन्स ऑल्सो. जो आपका वेस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज अन्नेमुदी एंड दोदा बेट्टा.
दैट इज इन नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में आपका कोयम्बतूर के ऊपर पड़ता है। एंड ईस्टर्न घाट्स में आपका जो है वो है महेंद्रगिरी। So this is what we have learned today.